Back to our channel Crack Government Exam. Today we will discuss the topic of love in this Hindu article. द हिंदू में आज एक लव के ऊपर एक आर्टिकल दिया हुआ है जो रूमी के लिए आप जानते होंगे, उसके बारे में समझाया। ऑल यू नीड इज़ लव, वाई रूमी लिव्स इनसाइड एवरीवन इन टाइम्स ऑफ ग्लूम। मतलब रूमी की इतनी महत्वता आज पूरे वेस्टर्न मीडिया में है कि इतने दुख भरे टाइम में भी वो हर किसी के दिल में बस रहे हैं। तो आप देखते हैं आगे इसमें क्या कहता है पोइट। द सूफी पोइट इज़ द बेस्ट सेलिंग ऑथर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड बुक्स ऑन दिस 13th century advocator of love keep coming. Writers like Bride Gooch point out that Rumi made claims for a religion of love that beyond organized faith, and therein lies the reason for his universal appeal. There may not be a Shams around to guide us and lend a helping hand, but there is a bit of Rumi inside each one of us. He resides in every heart that's loved and lost, and understand that a man who knows no love knows no sorrow. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात समझिएगा कि जो लव नहीं जानता वो दुख भी नहीं जानता है, ये रूमी कहते हैं। I once had 1,000 desires, but in my one desire to know you, all else melted away. I once had 1,000 desires, but in my one desire to know you, all else melted away. ठीक है। Each heart reveres to Rumi. Ask Coleman Barks, whose works on Rumi can light up the gloomiest of evening, besides filling up for yourself. As Robert Bly once wrote, recommending Barks the essential Rumi, Coleman Barks has brought an immense gift to the study of Islamic poetry. His version, bitty and touched by Southern poetry, supported by exuberant Rumi, never achieved before in English. Room for conversation. A few pages into the book, and one realized there is a bit of Rumi to take away from each poem. For instance, the far mosque where Rumi, alluding to Suleiman, one of the prophets of Islam, writes the place that Solomon made to worship in called for the for mosque is not built of earth and water and stone, but of intention and wisdom and mystical conversation and compensate action, every part of it, intelligence and Kal Jalaluddin Balkhi by the Afghans, where he was born in 1207. The fear of the rampaging Mongols forced his family to migrate to Konya in Turkey. The son of a well-respected theologian, Father Rumi was initially an orthodox scholar of Islam. तो रूमी पहले तो एक ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर थे इस्लाम के, ये आप देख रहे हैं इसमें ये सिर्फ साफ कह रहा है। इट ऑल चेंज विद अ चांस, ये एक चांस के हिसाब से उन्होंने चेंज किया अपना। मीटिंग विद अ वांडिंग डरविश शम्स ऑफ तरवेज, जब उनकी एक मुलाकात शम्स ऑफ तरवेज से हुई, द टू बीकेम इनसेपरेबल, तो दोनों एक दूसरे से ना जुदा होने वाले लोग बन गए। इनसेपरेबल मतलब ना जुदा होने वाले लोग। इवन एज अ डिबेट रेज about the nature of the relationship, most agree that Shams did become Rumi's mentor. बहुत से लोग ये मानते हैं कि शम्स जो थे, शम्स तरवेज, वो रूमी के मेंटोर थे। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है। So much so that even after Shams was probably murdered, Rumi continued to believe that Shams was now part of him. तो रूमी के अंदर वो शम्स का जो पार्ट था वो आ चुका था उनकी डेथ के बाद भी। And when he wrote his poetry, it was Shams writing through him. The making of a mistake. ब्रैड ब्रूच, जो एक फॉरेन राइटर है यूएसए का, वो कहता है, An authority on Rumi writes in Rumi's secret, the life of the Sufi poet of love, of the disruptive appearance of Shams, who taught him to whirl and transformed him for a respectable Muslim preacher into a poet and a mystic. तो वो धीरे धीरे जो रूमी है वो कैसे आपके एक बहुत अच्छे प्रीचर बन जाते हैं, इस आर्टिकल में ये समझाया गया है। सच इनडिसेपरेबल लव लेड टू मिलियंस, लीडिंग रूमी टू टर्न अ मिरर टू देयर इनर सेल्फ। तो रूमी जिस तरीके से बात कहते हैं वो हर किसी इंसान के अंदर के मिरर में झांकने के लिए उन्हें मजबूर कर देता है। रूमी रीडर इज़ एन एक्सप्लोरर, अ सीकर। जो रूमी को पढ़ने वाला होगा वो एक एक्सप्लोरर होगा और सीकर होगा, वरना अपने आप को खोजने वाला इंसान होगा, ऐसे नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। राइट्स कूच,
मेड्स क्लेम फॉर अ रिलीजन ऑफ लव डेट वेंट बियॉन्ड ऑर्गेनाइज फेथ। जो ऑर्गेनाइज फेथ है, सिस्टमेटिक बना हुआ है, इस्लाम का ऐसा है, हिंदुज़म का ऐसा है, उससे बहुत परे है रूमी का जीवन और रूमी की बातें, जो हमारे सबके समझ में इजीली नहीं आ सकती जब तक हम अपने आप को गहराई से नहीं जानने की कोशिश करेंगे। रूमी वॉज अ फॉन्ट फ्रॉम विच एवरी वन ड्रैंक एंड केम बैक रिचर वाइजर। रूमी ऐसा फॉन्ट है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको पीने के बाद हर कोई वाइजर और रिचर बन सकता है। टूडे ही इज़ द बेस्ट सेलिंग पोइट इन द यूएसए। यू नो डैट यूएसए में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो पोइट फिलहाल है वो रूमी है। एंड हिज वर्ड हैज़ सूथेड म्यूजिशियन लाइक मैडोना एंड क्रिस मार्टिन। आप एक नामी ग्रामी म्यूजिशियन का नाम यहाँ सुन सकते हैं, मैडोना, क्रिस मार्टिन, जो उन्हें पढ़ते हैं। चैलेंजिंग टाइम्स में उन्होंने इसको पढ़ा है। लेटर ऑफ एन क्वेटिंग ऑफ वन ऑफ रूमीज पोएम, द बिग ह्यूमन इज द बेस्ट guest every morning, a new arrival, a joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor. Unsurprisingly, the Rumi books keep coming. Noted author translator Farooq Dhundi have just penned Rumi, a new selection, Harper Perennial, wherein he explains the reason for the abiding love for Rumi. Dhundi writes in a book itself deserving of much love and rereading. The sales of his book in American translation surpassed those of William Shakespeare. समझ रहे हैं, विलियम शेक्सपियर को बंदे ने क्रॉस कर दिया है। इतना ज़्यादा रूमी अभी बिक रहे हैं। जॉन कीट्स, टी.एस. एलियट, इतने बड़े बड़े राइटर को उन्होंने सरपास कर दिया है। वाई? रूमी इज ग्रेट वर्क। द मंसनावी इज समटाइम्स डब्ड द कुरान इन वर्क। मंसाबी जो उन्होंने लिखी है उसके अंदर कुरान के वर्सेस वो देते हैं, बट फिर भी इतना बिक रहा है। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं है उनका, वो बियॉन्ड है उसके। It certainly is devoted to Islam, but to a version and interpretation of Islam with a long and widely adopted history, loosely referred to all in its variation as Sufism, dedicated to the divine. Interestingly, most of his ardent fans are not followers of Islam. आप समझ रहे हैं, जो उसके मोस्टली पढ़ने वाले लोग हैं वो इस्लाम को मानते तक नहीं, मतलब इस्लाम को जानने वाले भी लोग नहीं। दे कम टू रूमी फॉर मिस्टिकल रियलाइजेशन एंड फॉर लव। Dunia analyzes Rumi's verse does not celebrate explicit Romeo and Juliet interaction. वो ऐसा नॉर्मल रूमी जूलियो की कहानियाँ नहीं बता रहे होते हैं। द लव इट सेलिब्रेट्स कैन नेवर बी इंटरप्टेड एज द डेस्परेट इमोशन वन हैज़ फॉर द गर्ल नेक्स्ट डोर। द लव एक्सप्रेस्ड इन रूमीज वर्क, द 6 volumes and 24,000 verses of the Mansabi, his Diwan Shams dedicated to his inspiration and lover Shams Tarwez in his discourse and lectures is a dedication to the divine. When Rumi openly professed love for his inspiration and spiritual partner Shams, it not an expression of a gay relationship, but rather a metaphor for a divine bond, union of individual souls in a universal soul. Not known to many, Shams himself had great respect for Rumi. पता है आपको, शम्स उनके गुरु होने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने शिष्य के लिए रहा करते थे। And Shams F. Dhundi quotes Franklin Lois, especially said that there was no question of him being the master and Rumi the pupil. ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम कह दें कि रूमी प्यूपिल थे और शम्स मास्टर थे, दोनों एक जैसे थे, इनसेपरेबल थे। Let the scholar agree to disagree the joy and discovering Rumi all over again. With each new book, each new author, whether one is seeking love or longing without it. Rumi's words provide us fine accompaniment as disclosed in Rumi's Little Book of Life by Mariam Mafi and Ajima Colin. Don't grieve over past joys, be sure they will reappear in other form. पुराने दुखों पे आप कोई दुख जताने की ज़रूरत नहीं है, वो रीअपियर होंगे आपकी ज़िंदगी में। ए चाइल्ड जॉय इज़ इन मिल्क एंड नर्सिंग वट वंस वीन्ड इट फाइंड्स न्यू जॉय ऑफ ब्रेड एंड हनी। अब जब उसका वो दुख ख़त्म हो जाता है बच्चे का, आप समझ रहे होंगे कि एक बच्चे को कितनी खुशी मिलती है जब वो दूध और सिर्फ जो दूध के साथ चीज़ें खाई जाती हैं उन्हें खाता है, बट उसके बाद उसका वो चीज़ बदल जाती है और वो हनी और ब्रेड में तब्दील हो जाती है। इन स्लीप व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी, जब हम सोते हैं और हमारी रूह जो है वो हमारा साथ छोड़ देती है। यू मे ड्रीम ऑफ योर सेल्फ एज अ टॉल क्रिप्सरस और अ ब्यूटीफुल रोज। तो तुम अपने आप को कुछ भी इमेजिन करो कि मैं बहुत खूबसूरत गुलाब हो चुका हूँ या ये हो चुका हूँ, बट ही वॉन्ट माई फ्रेंड ऑल दिस फैंटम्स डिजॉल्व इन टू थिन एयर वंस द सोल रिटर्न्स टू द बॉडी। जब हमारे सोल में को वापस आना होगा हमारी बॉडी में तो वो सब डिजोल्व हो जाएगा। तो ऑफ ड्रीम्स लव एंड प्रेजेंट बॉडी एंड सोल रूमीज वर्क इनकैप्सुलेट देम ऑल, नेवर क्वाइट लाइक अ पर्सियन मैनिपुलेट गार्डन, मोर लाइक इन द विंड्स ऑल द जॉय इज अनसीन। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग द होल आर्टिकल
और इसी तरीके के आर्टिकल्स को अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड द हिंदू आर्टिकल्स को डेली समझाता हूँ इस चैनल पे। और इवन सिर्फ आर्टिकल्स ही नहीं समझाए जाते हैं, जॉब नोटिफिकेशन से लेके एसएससी जीएल को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको। और इस एग्ज़ाम को मैंने खुद ही क्रैक किया है और मुझे इतना पता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस किस तरीके का माइंडसेट बंदे का होना चाहिए। तो मैं इसलिए इन आर्टिकल्स पे और इस तरीके के आर्टिकल्स पे तवज्जो देता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ कि आपको बहुत बेहतर फील होगा मेरे साथ जुड़ने के बाद। थैंक यू वेरी मच।